Hello everyone. So in the last class, we completed the first part of Unit 2. So now from today onwards, we'll start with the second part of Unit 2. So in Unit 2, we'll be covering two main topics, the rectifiers and filters. So today we'll start with the rectifiers. Now you are already familiar with this term rectifier. And what are these rectifiers and filters? Basically, they are used in the initial stages of a DC power सप्लाई. तो इनका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है. सो वील स्टडी फर्स्ट रेक्टिफायर एंड देन वील सी व्हाट इज अ फिल्टर. Then you will get to know the use of rectifier and filter in a DC power supply. So what is a rectifier? We already know that rectifier is a device or a circuit which basically converts AC voltage into pulsating DC voltage. Or you can say that it is a device which converts AC power into DC power. Actually में हम exactly DC word नहीं use करेंगे. We usually use the term pulsating DC for a rectifier. क्यों? Because जब AC voltage जो है rectifier से pass होती है, तो जो हमारे पास output voltage होती है, that becomes DC, but it is pulsating DC. Some fluctuations or ripples are already present in this DC output. So we use filters to remove these pulsations from the DC output voltage. ठीक है? So what is a rectifier? This is a circuit or a device that converts AC voltage into pulsating DC voltage. तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ऐसा रेक्टिफायर हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे? To design such rectifiers or to design rectifiers, we use semiconductor PN junction diode. Why we use semiconductor PN junction diode? हम इसकी एक बहुत important property जो है उसका use करेंगे to get a rectifier. क्या important property है? कि जो semiconductor PN junction diode होते हैं, जब हम उन्हें forward biasing में connect करते हैं, then they allow current to pass through it. और जब हम सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, then they practically do not allow current to pass through it. So this property of semiconductor PN junction diode enables us to use it as a rectifier. ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है, the fact that the semiconductor PN junction diode allows current to pass through it when forward biased and no current to pass when reverse biased enables us to use it as a rectifier. So we already know that we have two types of rectifier. One is the half wave rectifier and the another one is the full wave rectifier. Now today we'll complete half wave rectifier and in the next class we'll start with the full wave rectifier. Now, so what is a half wave rectifier? This is the circuit connection of a half wave rectifier. Here this is the input AC voltage which is to be rectified. ठीक है, ये हमारे पास AC voltage है जिसको हमें rectify करना है. Rectify मतलब हमें इसे pulsating DC में convert करना है. तो इसको हम अप्लाई करते हैं अक्रॉस द प्राइमरी ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. देखो ट्रांसफॉर्मर जो है हमें पता है दो तरीके के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. ठीक है, हम यहाँ पर कोई भी ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं, ईदर स्टेप अप और स्टेप डाउन. यहाँ पर इन्होंने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो है वो शो किया है, बट हम कोई भी ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग हमारी क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है, अगर हमें इनपुट एसी वोल्टेज जो है उसको स्टेप अप करना है, उसको बढ़ाना है, देन वील यूज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. अगर हमें इनपुट एसी वोल्टेज को कम करना है, स्टेप डाउन करना है, देन वी यूज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. यूजुअली वी यूज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्योंकि इनपुट एसी वोल्टेज जो होती है उसकी आरएमएस वैल्यू जो है 220 वोल्ट्स होती है. ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर? यू ऑलरेडी नो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है एसी वोल्टेज को. ठीक है, इट आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द एसी वोल्टेज. हम यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं तो ये उसको डिक्रीज करेगा. ठीक है, अब जो हमारे पास एसी वोल्टेज आई, नाउ इट इज अप्लाइड टू द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. ये हमारा प्राइमरी कॉइल्स है, ये सेकेंडरी कॉइल्स है. ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में जो प्राइमरी कॉइल्स होती हैं दे आर ग्रेटर देन द सेकेंडरी कॉइल्स, और यू कैन से दैट
दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग। अगर मैं एग्जैक्ट फिजिक्स वाली लैंग्वेज यूज करूं, देन P इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइमरी ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और यहाँ पे ये जो टर्न्स है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग। लेट्स से दिस इज N1, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे टर्न्स है, लेट्स से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय N2, which is the number of turns in the secondary winding, and you already know for a step down transformer N1 is greater than N2, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सर्किट में इनपुट AC वोल्टेज है, उसको हमने अप्लाई किया अक्रॉस द प्राइमरी ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सो दिस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विल स्टेप डाउन द इनपुट AC voltage, so we'll get the final input voltage at the secondary of the transformer। अब हमारे पास जो यहाँ वोल्टेज आई, दैट इज नाउ द इनपुट AC वोल्टेज। ये जो ग्राफ प्लॉट किया है ना, इसमें जो इनपुट AC वोल्टेज है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इसको अब हमने कनेक्ट किया टू अ PN जंक्शन डायोड, विच इज देन कनेक्टेड टू अ लोड रेजिस्टेंस RL, जहां पर हम आउटपुट DC वोल्टेज को मेजर करेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पर आउटपुट DC वोल्टेज हमारा प्लॉट हुआ है, दिस इज द आउटपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, उसको हम मेजर करेंगे अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टर RL। दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस, तो PN जंक्शन डायोड के अक्रॉस जो करंट होगा वही करंट हमारा RL के अक्रॉस होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास the secondary of the transformer is connected to a PN junction diode through a load resistance RL across which the output DC voltage is obtained। इसके across जो है हम voltage जो है उसको obtain करेंगे, और current भी कह सकते हो, current obtain करेंगे, ठीक है। जो हमारी इनपुट वोल्टेज है दैट इज द AC वोल्टेज। तो जो वोल्टेज है सेकेंडरी में, दैट इज अप्लाइड टू द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, वो हमारी ऑल्टरनेटिंग है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, नाउ वील सी कि हाउ दिस रेक्टिफायर वर्क्स ड्यूरिंग बोथ द साइकिल्स ऑफ द इनपुट AC वेव, ठीक है। पहले हम कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर हम कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब हम ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं इनपुट AC का, ठीक है, तो हमारा ये जो A है इट विल बी at positive, और ये जो B है it will be at negative। So P is connected to positive, N is connected to negative, so that means our diode is now forward biased। Diode forward biased है, that means it will conduct, so the diode will conduct through the load resistance RL, ठीक है। और इसका मतलब जब डायोड हमारा कंडक्ट करेगा, then it will act as a short circuit so that the circuit current flows and produces a voltage across the load resistor RL। तो हमारा ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा। देखो यहाँ पर ना शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है, अब ये जो है सिर्फ एक वायर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो करंट जो है वो फ्लो होगा, सो वील गेट अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL। तो जितनी वोल्टेज इनपुट है वही हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी, ठीक है। यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई करी, ठीक है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज एक्टिंग एज अ शॉर्ट सर्किट, मतलब इट इज डायरेक्टली अलाउइंग द करंट टू पास थ्रू। तो यहाँ पे हमारी जितनी वोल्टेज है उतनी वोल्टेज ड्रॉप हमारी अक्रॉस RL होगी। तो आउटपुट DC वोल्टेज जो है हमारा एग्जैक्टली सेम होगा एज दैट ऑफ इनपुट AC वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यही एज इट इज पीक आएगी ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, वेयर V0 इज द पीक वैल्यू, ठीक है। इसकी भी यही पीक वैल्यू होगी, इसकी भी यही पीक वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा, A इज नाउ एट नेगेटिव, B इज नाउ एट पॉजिटिव, ठीक है। जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है नाउ इट इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ गए, तो अब हमारा जो P टाइप रीजन है दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड N इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। दैट मींस ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज रिवर्स बायस्ड। इफ द डायोड इज रिवर्स बायस्ड दैट मींस इट विल नॉट conduct. So if it will not conduct, then there will be no current flow or voltage drop across the load resistor
RL. That means now the diode is acting as an open circuit. ठीक है, अब डायोड जो है हमारा ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा एंड वील गेट नो करंट और वोल्टेज आउटपुट. अब हमारा डायोड कैसे एक्ट करेगा, ऐसे. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है लोड रेजिस्टर RL. तो अब क्या होगा, करंट जो है वो पास नहीं हो पाएगा. सो देयर विल बी नो वोल्टेज और करंट अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टर RL. तो हमारे पास आउटपुट क्या है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल वी गेट अ कंप्लीट 0. Then again during the positive half cycle diode becomes forward bias, so it will act as a short circuit. So there will be current flow across the load resistance RL. This is the voltage drop across RL. Then during the negative half cycle, again no voltage drop or current across RL, and this will go on. So this is the output of a half wave rectifier. And how we can say that this AC voltage is converted into pulsating DC voltage, क्योंकि देखो इनपुट AC voltage जो है it is changing direction periodically. ठीक है, periodically इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट आउटपुट DC वोल्टेज क्या है, ये वेरी तो कर रहा है इन मैग्नीट्यूड बट इट इज नॉट चेंजिंग इन डायरेक्शन. ठीक है, ये पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहा. So this output voltage is changing in magnitude but it is not changing in direction, so it can be said to be as the DC voltage. But here magnitude is changing, so we say that it is not the steady DC current or voltage, it is the pulsating DC voltage. Okay, so this is how a half wave rectifier works. जो मैंने बोला है वो सब यहाँ पे लिखा है. ठीक है, during the positive half cycle diode will conduct, so there will be a voltage drop across RL. During the negative half cycle diode will not conduct, no current will flow in the circuit, so there will be no voltage across RL. Okay, and this will go on in the next half cycle. Next, in the next half cycle it will conduct, then in the next half cycle it will not conduct, and this will go on. Okay, so here we can say that the AC input is converted into pulsating DC. Okay, this is converted into pulsating DC. And why this is known as half wave rectifier or half wave rectification? Because we know that this circuit uses only one half cycle of the AC input voltage. So that's why it is popularly known as the half wave rectifier, and this process is called half wave rectification. ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने स्कूल में. ठीक है, अब डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर हम कैलकुलेशंस करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे डीसी वोल्टेज की, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, रिपल फैक्टर निकालेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे रेक्टिफायर की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अब हम नाउ वील प्रोसीड विद दी कैलकुलेशंस. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, जो हम इनपुट एसी वोल्टेज ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं. लेट we are considering in this form V is equal to V naught sin omega t. ठीक है, V is equal to V naught sin omega t is the input AC voltage. तो यही हमारा आउटपुट होगा, V is equal to V naught sin omega t at any time t. ठीक है, यहाँ पर देखो sin omega t, that means ओमेगा हमारा क्या होता है 2 pi by t. ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पे t जो है t by 2 है, ठीक है, जब t हमारा t by 2 हो जाएगा, हमारे पास ओमेगा t कितना आया पाई, साइन पाई कितना होता है 0, तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई. ठीक है, बिकॉज v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. तो एट t इज इक्वल टू, यहाँ पर एकदम स्मॉल t प्लॉट कर रहे हैं, सो एट t इज इक्वल टू t by 2 साइन ओमेगा t becomes 0. नेक्स्ट एट स्मॉल t equal to capital T, again we have now sin 2 pi, and sin 2 pi is 0. So we have a sinusoidal wave in the form V is equal to V naught sin omega t, where V naught is the peak value or the amplitude of input AC voltage. ठीक है, so what will be the current now? Current क्या होता है हमारा, voltage upon resistance. ठीक है, so at any time t, let's say current is I naught sin omega t. ठीक है, तो हमारा I naught कितना होगा, I naught is, तो करंट क्या है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. वोल्टेज कितनी है एट एनी टाइम t, V नॉट साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट में, RF प्लस RL. RF हमारा क्या है, दिस इज द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड. डायोड भी हमने पढ़ा है ना, जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है तो
कुछ रेजिस्टेंस जो है इसकी प्रेजेंट होती है, कुछ रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमारा आइडियल डायोड नहीं है, दिस इज अ रियल डायोड, सो देयर हैज टू बी सम रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, सो दिस रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज नोन एज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड विच इज डिनोटेड बाय RF, ठीक है। इसके बारे में तुम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, RF प्लस RL। So I is equal to V naught sin omega t upon RF plus RL, which is equal to I naught sin omega t, where I naught is the peak value of the alternating current, where I naught is not the peak, where I naught is the peak value of the output current, which is unidirectional, ठीक है। So here current is pulsating but unidirectional, that means it is DC, pulsating DC, it is having some ripples, कुछ AC component इसके अंदर present है, it is not pure DC but it is unidirectional, it is not changing in direction। तो and here I naught is V naught upon RF plus RL, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूं तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो ये मेरा क्या प्लॉट हो रहा है, ये मेरा V प्लॉट हो रहा है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इनपुट वोल्टेज भी है हमारी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों में फर्क कितना है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल हमारी 0 हो जाती है, तो हमारा जो आउटपुट है वो यूनिडायरेक्शनल है एंड वी कैन से दैट इट इज पल्सेटिंग DC। अब हम करंट को प्लॉट करेंगे, आउटपुट करंट, it is also now unidirectional which is equal to I naught sin omega t। अब I naught हमारा क्या है, V naught upon RF plus RL, मतलब ये जो पीक वैल्यू है V naught की उसको हम डिवाइड कर रहे हैं by the total resistance RF plus RL, that means I naught जो है हमारा V naught से छोटा होगा। तो I is equal to I naught sin omega t को हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर then we have 0, it is unidirectional, then again some peak, ये smooth peak है इस तरीके से, ठीक है। then we have 0, so this is representing the plot of the output unidirectional current I which is equal to I naught sin omega t। तो ये जो हमारी peak value है ना, this is I naught which is equal to V naught upon RF plus RL, ठीक है। तो ये जो करंट है हमारा, ये हमारा I naught sin omega t होगा for t lying between 0 से t/2, ठीक है। ये देखो यहाँ t/2 है ना, 0 से t/2 तक I is varying as I naught sin omega t, then t/2 से t तक it is 0, then again t से 3 t/2 तक it is still varying as I naught sin omega t, depending upon the value of t उसकी वैल्यू आएगी, then again from 3 t/2 से 2t तक current is again 0, ठीक है। so the output is unidirectional, that means it is behaving as DC, it is not changing direction। so this is the input AC voltage, this is the output unidirectional current which is non-zero for t lying between 0 से t/2 and I is 0 for t lying between t/2 से t, इसका ध्यान रखना है। आई होप ये सबको क्लियर है। V नॉट एंड I नॉट हमारा क्या है, ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। These are representing the peak values of the input voltage and the current respectively। RF जो है हमारा, this is the forward resistance of the diode और it is also known as the dynamic forward resistance of the diode। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है। RL जो है हमारा, this is the load resistance जहां पर हम आउटपुट जो है मेजर कर रहे हैं। डायोड जो है हमारा, that is conducting through the load resistance RL। पीक वैल्यू ऑफ करंट जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। I नॉट जो है हमारा होगा V नॉट अपॉन RF प्लस RL, where RF is the dynamic forward resistance of the diode and RL हमारा जो है that is the load resistor, जहां पर हम वोल्टेज या करंट जो है उसको मेजर करते हैं with the help of वोल्टमीटर और एमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, now the performance of the rectifier is judged by knowing certain quantities discussed below। अब हम कुछ quantities जो है उनको find out करेंगे और देखेंगे कि ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये कितना यूजफुल है या कितना यूजफुल नहीं है। तो first thing that we'll derive is the average value of DC current। DC है, that means we are talking about the output
करंट। तो आई हमारा कितना है, दिस इज आई नॉट साइन ओमेगा टी इन द रेंज 0 से t बाई 2, इट इज 0 इन द रेंज t बाई 2 से t। जब मैंने सबसे शुरू में यूनिट 2 के एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू लिखानी सिखाई थी, तो वहां पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, जो उसका ऑल्टरनेटिंग वे था, बुक में थोड़ा सा टिपिकल वे दे रखा था, तो वो जो ऑल्टरनेटिंग वे है वो यहाँ पर अप्लाई कर रखा है, ठीक है। देखो हमारा 1/2 साइकिल जो है कितना है, हमारा जो हाफ साइकिल नहीं सॉरी, हमारा पूरा जो टाइम पीरियड है वो कितना है, हमारा टाइम पीरियड कितना है, ये पूरा 1 साइकिल है, उसके बाद ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, अब ये रिपीट हो रहा है, तो हमारा एक साइकिल कितना है, ये दिस इज 1 साइकिल, ठीक है। तो ये पूरा 1 साइकिल के लिए व्हाट इज द टाइम पीरियड, t, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर जो है उसको क्या लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में डायरेक्टली t लिखा हुआ है, दिस इज इंटीग्रल 0 से t dt। हमारा जो साइकिल है वो पूरा कितना साइकिल है करंट का, इस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज 1 साइकिल, इसके बाद जो इट इज रिपीटिंग, ठीक है। सो दिस इज अप टू t इज इक्वल टू कैपिटल T। तो डिनोमिनेटर हमारा होगा 0 से कैपिटल T dt विच इज t। तो यहाँ पे t आ गया, न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, 0 से t आई नॉट साइन ओमेगा t dt, ठीक है। हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, मैं यहाँ लिखती हूँ, फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ एवरेज का पहले भी, ठीक है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। हमारा ये होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी या आई डी टी, ठीक है। आई जो है दैट इज वेरिंग विद टाइम। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम है, इस तरीके से अगर हम लिखते हैं, जो हमारी करंट की वैल्यू है वो चेंज हो रही है आफ्टर टी बाई 2। इस साइकिल में 0 से t बाई 2 तक तो करंट इज वेरिंग एज आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम यहाँ t को लिखेंगे t बाई 2। नेक्स्ट प्लस t बाई 2 से t तक आर करंट इज 0, तो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। करंट जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है एट t इज इक्वल टू t बाई 2। तो हम क्या करेंगे, हम जो इंटीग्रल है फ्रॉम 0 से t उसको स्प्लिट करेंगे दो में, 0 से t बाई 2 प्लस t बाई 2 से t। 0 से t बाई 2 में करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी एट एनी टाइम t, t बाई 2 से t तक करंट जो है वो 0 है फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ t। तो ये टर्म हमारी चली गई। सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस टर्म फ्रॉम 0 से t बाई 2। सो साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा। So now substitute the values of limits of integration, तो ये हो गया माइनस आई नॉट अपॉन टी, सब्सटीट्यूट ओमेगा एस 2 पाई बाई टी। जब हम स्मॉल t को t बाई 2 पुट करेंगे, ओमेगा को 2 पाई बाई टी पुट करेंगे, तो ये क्या हो गया 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, दिस बिकम्स cos pi इज -1। नेक्स्ट जब 0 पुट करोगे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इट विल बी माइनस cos 0 is again 1, so we get -2। So this will become 2 will cancel out, minus minus plus हो जाएंगे, so we get IDC or the average value of DC current is equal to I naught upon pi, which is equal to 0.318 I naught। I hope ये सबको clear है how we have obtained the average value of DC current। Similarly, we can find the average value of DC output voltage। VDC हमारा कितना आएगा, V naught upon pi which is 0.318 into V naught। अगर इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से निकालना चाहते हो VDC को, तो कैसे निकालोगे, VDC हमारा फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से t बाई 2 V naught sin ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 0 से t dt। ठीक है, ध्यान से सुनो, न्यूमरेटर में इंटीग्रल है 0 से t बाई 2 V naught sin ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में इंटीग्रल है 0 से t dt, क्योंकि इंटीग्रल जो है हमारा t बाई 2 से t तक वो 0 होगा इन द न्यूमरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन t बाई 2 तक होंगे, डिनोमिनेटर में t तक होंगे, तो वहां से भी जब कैलकुलेट करोगे तो VDC जो है तुम्हारा इतना ही आएगा। ठीक है, so VDC is V naught upon pi, IDC is I naught upon pi। नेक्स्ट
तो यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं, चलो ये मैं बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट वील सी द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब हमें हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है इट इज नॉट अ प्योर डीसी, उसके अंदर कुछ पल्सेशंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। जो वो पल्सेशंस है दे आर बेसिकली द एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट वोल्टेज, जिसको हम फर्दर आगे रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो हमारा करंट है उसमें उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है। Let IRMS with the root mean square value of the input AC ripple current. So what will be the IRMS for half wave rectifier? ठीक है, जैसे मैंने पहले फॉर्मूला बताया था आरएमएस का, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर तो हम इंटीग्रल 0 से t dt रखेंगे विच विल बी t, तो यहाँ एज इट इज हमने t लिख दिया इन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हमारे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है 0 से t/2 हो जाएंगे, क्योंकि t/2 से t तक करंट हमारा 0 है फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है I is 0 from t/2 to t। नाउ क्या करेंगे, रूट लेंगे, किसका लेंगे, मीन का, किसका मीन, स्क्वायर का, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर का मीन लो फिर उसका रूट ले लो, ठीक है। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका हमने मीन लिया, तो मीन क्या होगा, इंटीग्रल 0 से t/2 आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 0 से t dt, ठीक है। फिर उसका हमने रूट ले लिया। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आई नॉट कांस्टेंट है, इट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, सो इट विल बी आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को वी कैन राइट एज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। अब इसको इंटीग्रेट करो, 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, 1/2 इंटू टी, यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है हमारी 0 से t/2 है, ठीक है। cos 2 ओमेगा टी जो है इसका इंटीग्रेशन जो है हमारा, जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम पुट कर देंगे इट विल कम आउट टू बी 0। ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है, जब पहले मैंने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी सिखाई थी एसी इनपुट एसी की, तो वहां पे मैंने बताया था cos 2 ओमेगा टी जो है इसका किस तरीके से इंटीग्रेशन जो है हम निकालेंगे। cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, ठीक है। sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। अब उसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दो, ओमेगा को 2π/t पुट करो, t को t/2 पुट करो, sin 0 तो 0 होता है, तो हमारे पास cos 2 ओमेगा टी जो है इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा, ठीक है। ये सब जो है अपनी बुक में सॉल्व करके देखेंगे कि जो सेकंड पार्ट है इसका इंटीग्रेशन 0 क्यों आएगा, इन द लिमिट्स 0 से t/2। इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी बता दी, sin 2 ओमेगा टी की होती है, cos 2 ओमेगा टी की होती है sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, वेयर ओमेगा इज 2π/T, और t की तुम स्मॉल t की तुम्हें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करनी है कैपिटल T/2 एंड 0। 1/2 जो है हमारा इसका इंटीग्रेशन हुआ 1/2 इंटू स्मॉल टी में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करो t/2 माइनस 0, सो इट विल बी t/2, और ये एक 2 जो है वो हमारा यहाँ पर आ गया। आई होप ये सबको क्लियर है, जिसको नहीं क्लियर खुद से इसको सॉल्व करके देखो, मैं ऑलरेडी पहले ये चीजें बता चुकी हूँ। सो इट कम्स आउट टू बी आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी अपॉन 2 का स्क्वायर रूट, टी कैंसिल आउट होगा, सो इट विल बिकम आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर रूट। देखो यहाँ लिखा है ये ऑलरेडी 0 होता है ये सब, लेकिन सॉल्व करके देखेंगे कि ये 0 कैसे आता है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सो इट विल बिकम आई नॉट अपॉन 2, सो द आरएमएस वैल्यू of the current comes out to be I naught upon 2, ठीक है। तो हमने एवरेज वैल्यू निकाल ली I naught upon पाई, हमने which is 0.318 into I naught, हमने RMS वैल्यू निकाली, this is I naught upon 2. Now what we'll have to find the efficiency of the rectifier. हम देखेंगे तो सही ना रेक्टिफायर कितना एफिशिएंट है, कितना एफिशिएंटली ये AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट कर रहा है, कितना एफिशिएंटली ये एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो रेक्टिफायर एफिशिएंसी जो होती है इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ output DC power to the input AC power, that means the ratio of DC power delivered to the load. लोड हमारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस RL जिसके अक्रॉस हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं, तो डीसी पावर आउटपुट क्या होगा हमारा, डीसी पावर डिलीवर टू द लोड टू द एसी इनपुट पावर। इनपुट पावर हमने कहाँ पे दिया था,
at the secondary of the transformer. So rectifier efficiency can be defined as the ratio of DC power delivered to the load to the AC input power from the secondary of the transformer. यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे कितनी AC power जो है DC power में convert हुई है. So for this first we'll have to find the DC power and the AC power. तो हमारी AC पावर क्या होगी? पावर का फॉर्मूला सबको पता है, दिस इज I स्क्वायर R, ठीक है. और हम AC की बात कर रहे हैं, सो वी विल कंसीडर द RMS वैल्यू. तो I स्क्वायर क्या हो जाएगा? I RMS का स्क्वायर. टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट में? RF प्लस RL. सब्स्टिट्यूट I RMS इज I नॉट अपॉन 2. सो दिस इज द इनपुट AC पावर or the power supplied to the rectifier from the secondary of the transformer. Now what will be the output DC power? That will be, जो हम output measure कर रहे हैं, that we are measuring at the load resistance RL. So the average output power through the load resistance RL will be I square R. I square में हमारे पास I क्या होगा? IDC, क्योंकि RL के क्रॉस हम जो एवरेज पावर हम देखेंगे ना कितना AC DC में कन्वर्ट हुआ, तो एवरेज वैल्यू कितनी है करंट की? IDC, उसका स्क्वायर करेंगे एंड वी आर मेजरिंग अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL. तो रेजिस्टेंस हो गया RL. I नॉट को अब हम IDC को लिखेंगे in terms of I naught. So IDC is I naught upon pi. So the average output power will be I naught square upon pi square into RL. ठीक है? So we get the average output power. So after getting the input AC power and the average output power, we can get the efficiency of the half wave rectifier. So substitute these values in the formula. Eta हमारा जो rectifier efficiency है, that is denoted by eta. So that is equal to PDC upon PAC. PDC हमारा कितना है? This is I naught square upon pi square RL given by equation 6.30. PAC कितना है? I naught upon 2 का whole square into RF plus RL into 100. 100 हम क्यों निकाल रहे हैं? Because we are finding out the efficiency in percentage. ठीक है, तो इसलिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. Now I naught square cancel out होगा, इसको solve करोगे, it will come out to be 40.6 into RL upon RF plus RL. So from this we can say that under the best conditions, only 40.6% of the AC input power is converted into DC in the load. So from this we conclude that the efficiency of a half wave rectifier is 40.6% under the condition that the value of load resistance is very small is very large as compared to the forward resistance of the diode. So we can say that in actual practice the efficiency is always less than 40.6%, क्योंकि usually जो forward resistance है diode की उसको हम neglect नहीं कर सकते. अब ये जो line मैंने बोली इसका मतलब क्या है? देखो, इस equation को I can write as 40.6%, ये परसेंटेज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को RL से डिवाइड कर दूं, सो दिस विल गिव 1 प्लस RF अपॉन RL. ठीक है, आई कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म. इसका मतलब क्या है? हमारा अगर हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है दैट इज very greater than the dynamic forward resistance of the diode, in that case RF upon RL जो है that will become very less than 1. So we can neglect this term in comparison to 1 and we can say that the efficiency of a half wave rectifier is 40.6%. ठीक है, तो 40.6% इसकी efficiency है under the condition when the load resistance is very large as compared to the forward resistance of the diode. ठीक है, so we can say that in actual practice the efficiency of a half wave rectifier is always less than 40.6% since we cannot neglect the forward resistance of the diode in comparison to the load resistance RL.
इसलिए यहाँ पे लिखा है दैट अंडर द बेस्ट कंडीशंस ये एफिशिएंसी है, अदरवाइज इससे भी कम है. So from this we can say that only the 40.6% of the AC input power is converted into DC. इसका मतलब बहुत ही कम अमाउंट AC का DC में कन्वर्ट हो रहा है. आउटपुट जो है हमारा, आउटपुट वोल्टेज जो है उसमें जो है बहुत सारा AC कंपोनेंट जो है स्टिल प्रेजेंट है. तो अब हमें ये निकालना है कि ये जो AC कंपोनेंट है ये कितना प्रेजेंट है. ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपल फैक्टर. दैट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रिपल फैक्टर. ठीक है, रिपल फैक्टर क्या कहता है हमारा, देखो द आउटपुट वोल्टेज और द लोड करंट of a rectifier, it basically consists of two components. One is the DC component and another one is the AC component. जो AC component हमारा present है आउटपुट में, वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं, ripples कहते हैं. ठीक है, तो ripples हमारा क्या है, these are basically the undesirable component and it accounts for pulsations in the output of the rectifier. Ripples जो है it basically accounts for the pulsations. कितनी pulsations present है आउटपुट में रेक्टिफायर के, या हम कह सकते हैं कितना AC component जो है वो present है in the output of a rectifier. ठीक है, so we can say that the effectiveness of a rectifier depends upon the magnitude of ripple in the output. ठीक है, जितना कम रिपल प्रेजेंट होगा आउटपुट में, मतलब जितनी कम फ्लक्चुएशंस या जितनी कम पल्सेशंस होंगी हमारी आउटपुट में, उतनी ही ज्यादा उसमें डीसी है, उतना ही ज्यादा एसी जो है डीसी में कन्वर्ट हुआ है. दैट मींस उतना इफेक्टिव जो है हमारा रेक्टिफायर होगा. जितना कम हमारा रिपल फैक्टर होगा उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी होगी रेक्टिफायर की. क्यों? जितना कम रिपल फैक्टर होगा, मतलब जितना कम एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा आउटपुट में, जितना कम फ्लक्चुएशंस या पल्सेशंस होंगी आउटपुट में, उतना ही ज्यादा डीसी कंपोनेंट होगा. सो दिस इज बेसिकली द मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ डीसी आउटपुट. जितना ज्यादा एसी डीसी में कन्वर्ट होगा उतना ही ज्यादा रेक्टिफायर एफिशिएंट होगा. हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है आउटपुट में, ये हमारा क्या है, दिस इज बेसिकली द अनडिजायरेबल कंपोनेंट, क्योंकि हमें एसी को प्योरली डीसी में कन्वर्ट करना है. तो जितनी पल्सेशंस है ये अनडिजायर्ड है, इनको हमें रिमूव करना है. ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है जो हमारा डीसी आउटपुट है, इट बेसिकली कंटेन्स फ्लक्चुएशंस और पल्सेशंस, और यू कैन से कि जो हमारा आउटपुट है इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, द डीसी कंपोनेंट एंड द एसी कंपोनेंट. दिस एसी कंपोनेंट बेसिकली अकाउंट्स फॉर दिस फ्लक्चुएशंस और पल्सेशंस. तो जो हमारा रिपल है, दिस इज द डिपार्चर ऑफ द आउटपुट करंट फ्रॉम द प्योर डीसी. ठीक है, तो रिपल फैक्टर जो है ये बेसिकली मेजर करता है of fluctuating or pulsating component of the current, or you can say that it measures the AC component of the current. So this is basically the measure of purity of DC output. जितनी कम इसकी वैल्यू होगी उतना ही प्योर हमारा DC आउटपुट होगा, या उतना ही ज्यादा DC कंपोनेंट होगा आउटपुट में. जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही कम हमारा डीसी कंपोनेंट होगा आउटपुट में. ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, देखो एसी कंपोनेंट है तो हम आरएमएस वैल्यू कहेंगे, डीसी कंपोनेंट है तो हम एवरेज वैल्यू कहेंगे. ठीक है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ RMS value of the AC component of the wave to the average और द डीसी वैल्यू ऑफ द वेव. हम रेशियो निकालेंगे जो हमारा आउटपुट है, रेक्टिफायर आउटपुट है, उसका आरएमएस वैल्यू एसी कंपोनेंट का डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू डीसी कंपोनेंट का. ठीक है, तो दैट कैन बी, तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं that R is equal to, R is representing the ripple factor, this is equal to I prime RMS upon IDC. What is I prime RMS? जो हमारा रेक्टिफायर आउटपुट है उसमें जो हमारा डीसी कंपोनेंट है उसकी एवरेज वैल्यू है IDC, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. दैट केम आउट टू बी I0 अपॉन पाई.
अब जो हमारा आउटपुट है उसमें AC कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, तो लेट्स से उस AC कंपोनेंट की RMS वैल्यू है I प्राइम RMS। ये अभी हमें नहीं पता। हमने टोटल RMS वैल्यू निकाली थी करंट की, हमने क्या नहीं निकाला कि आउटपुट के अंदर जो हमारा AC कंपोनेंट प्रेजेंट है, जो पल्सेशंस प्रेजेंट है, उसकी कितनी RMS वैल्यू है। ठीक है, सो दैट कैन बी, सो R कैन बी रिटन एज I प्राइम RMS अपॉन IDC, that is equal to V prime RMS upon VDC, where I prime RMS and V prime RMS जो है they denote the RMS value of alternating current and alternating EMF through the load resistance, that means the output current या output voltage जो है it consists of two components। जो हमारा output current है उसकी RMS वैल्यू कितनी है, IRMS। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है इसको ध्यान से समझना। देखो हमने क्या किया, AC कंपोनेंट जो है उसको पास किया फ्रॉम द रेक्टिफायर से पास करके फिर हमने लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस आउटपुट मेजर किया। हमारा जो आउटपुट आया वो यूनिडायरेक्शनल आया, इट इज नॉट चेंजिंग डायरेक्शन, इट इज इन सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही, सो वी कैन से दैट द आउटपुट जो है दिस इज द पल्सेटिंग DC आउटपुट, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो वो जो हमारा आउटपुट आया है, लेट्स से उसका जो RMS वैल्यू है दैट इज IRMS, अगर करंट है, वोल्टेज है तो VRMS, वो हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू I नॉट अपॉन 2 और VRMS इज V नॉट अपॉन 2। अब ये जो हमारा आउटपुट है इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, AC एंड द DC। लेट्स से इसका जो AC कंपोनेंट है उसकी RMS वैल्यू है I प्राइम RMS और V प्राइम RMS। अगर हम करंट की बात करें तो I प्राइम RMS, वोल्टेज की बात करें तो V प्राइम RMS, और उसके अंदर जो DC कंपोनेंट है उसकी एवरेज वैल्यू है IDC। अगर करंट की बात कर रहे हैं, वोल्टेज की बात करें तो VDC। ये IDC हम निकाल चुके हैं, दिस इज I नॉट अपॉन पाई और VDC इज V नॉट अपॉन पाई। हमें क्या नहीं पता, I प्राइम RMS और V प्राइम RMS की जो AC कंपोनेंट है हमारा आउटपुट में उसकी RMS वैल्यू कितनी है वो अभी हमें नहीं पता। Next, the output current RMS of a rectifier consists of direct component IDC and the effective value of the ripple component I prime RMS. जो output है हमारा it consists of two components, the DC component and the AC component. जितना कम ये AC component होगा उतना ही ज्यादा effective हमारा rectifier होगा, और you can say that जितना ज्यादा ये हमारा DC component होगा उतना ही अच्छा हमारा rectifier होगा, उतना ही ज्यादा वो एफिशिएंट होगा। अब इसमें इस चीज का ध्यान रखो, हम कब RMS लिखते हैं और हम कब DC लिखते हैं। जब हम प्योर DC आउटपुट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, वहां हम एवरेज वैल्यू लेते हैं जो DC से IDC या VDC से डिनोट होती है। जब हम किसी ऐसी वैल्यू की बात कर रहे हैं करंट या वोल्टेज की जिसके अंदर AC कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, तो वहां पर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं RMS। ठीक है, नेक्स्ट, इस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है, दिस इज फ्रॉम द AC सर्किट थ्योरी। IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू IDC का स्क्वायर प्लस I प्राइम RMS का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है इसको तुम्हें याद रखना है। दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ द रेक्टिफाइड लोड करंट, RMS value of the rectified load current. Rectified means it is after passing through the rectifier. So this IRMS is the RMS value of the rectified load current. So this is given by this expression. तो हमें क्या है, IDC पता है, IRMS पता है, और IRMS, IDC और I प्राइम RMS के बीच में रिलेशन पता है। So we can find the value of I प्राइम RMS। I प्राइम RMS क्या हो गया, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द एक्सप्रेशन ऑफ रिपल फैक्टर, तो R इज इक्वल टू I प्राइम RMS upon IDC, where I प्राइम RMS is square root of
IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर, इस IDC को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले गए, सो इट बिकम्स IDC का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो इसको वी कैन राइट एज इन स्क्वायर ब्रैकेट IRMS upon IDC का होल स्क्वायर माइनस 1 एंड अ स्क्वायर रूट. So ripple factor R is equal to under root of IRMS upon IDC का होल स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूला जो है एक्चुअली इसका आने का ओरिजिन मतलब क्या है, इसका ओरिजिन बेसिकली देखो, IRMS को हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते IDC प्लस IRMS का प्राइम, ठीक है। IRMS को हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते एज IDC प्लस I प्राइम RMS। क्यों? क्योंकि DC हमारी एवरेज वैल्यू है और RMS हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। जब हम एवरेज वैल्यू लेते हैं तो हम सिर्फ हाफ साइकिल के लिए लेते हैं, दोनों साइकिल के लेते हैं तो हम कहते हैं सम जीरो हो जाता है, और RMS वैल्यू जो है वो हम कंप्लीट वन साइकिल के लिए लेते हैं यूजुअली, जब हम AC वोल्टेज की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था तुम्हें, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, ये एक फॉर्मूला जो है ये डिराइव किया गया था, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द AC सर्किट थ्योरी, कि हम जब RMS और DC इन दोनों को जब एक साथ एक इक्वेशन में लेकर आते हैं तो हम इनको डायरेक्टली ऐड नहीं करते, हम स्क्वायर का एडिशन करते हैं, तो वहां से ये इक्वेशन आई है। हम IRMS को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे IDC प्लस I प्राइम RMS, हम उनके स्क्वायर्स को ऐड करेंगे, ताकि जो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो नेगेटिव वैल्यूज है हम कह सकते हैं वो एक तरीके से हमारी स्क्वायर हो गई, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू IDC का स्क्वायर प्लस I प्राइम RMS का whole square. So you can use this expression directly and you get this value of ripple factor. Now substitute IRMS and IDC in this expression. We know IRMS is I naught upon 2 and IDC is I naught upon pi. So ripple factor comes out to be 1.21 for a half wave rectifier. अब देखो ये हमारा क्या है, AC component divided by DC component, ये क्या रेशियो है, रेशियो ऑफ AC component to the DC component। तो ये हमें क्या बता रहा है, this is equal to 1.21, that means I prime RMS is equal to 1.21 into IDC, और V prime RMS is equal to 1.21 into VDC. That means I prime RMS is greater than IDC and V prime RMS is greater than VDC. इसका मतलब क्या है, जो हमारा रेक्टिफाइड आउटपुट है उसमें DC कंपोनेंट कम है, AC कंपोनेंट ज्यादा है। So this shows that the output DC voltage, it shows that the RMS ripple voltage exceeds the output DC voltage, and this shows a half wave rectifier is a poor circuit for converting alternating current into the direct current. अगर हम AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज कर रहे हैं, तो हमने देखा कि हमारे पास जो रेक्टिफाइड आउटपुट है उस आउटपुट में जो AC कंपोनेंट है वो ज्यादा है DC कंपोनेंट से। तो अब इसका कोई यूज हुआ, we can say that in terms of percentage अगर मैं बोलूं तो it says that the amount of AC component present in the output of a half wave rectifier is 121% of DC output voltage. So from this you can conclude that this is not very successful in converting the current or voltage from AC to DC, क्योंकि हमें क्या फाइनली डीसी कंपोनेंट चाहिए और इसमें तो एसी कंपोनेंट ज्यादा प्रेजेंट है एज कंपेयर टू डीसी कंपोनेंट, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी इतनी कम होती है। एंड अंडर द बेस्ट कंडीशंस द एफिशिएंसी इज 40.6%, बट यूजुअली इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 40.6%, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेन चीजें डिराइव करी। हाफ वेव रेक्टिफायर अगर एग्जाम में आता है तो इसका ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं कि कैलकुलेट द रिपल फैक्टर और कैलकुलेट द रेक्टिफायर एफिशिएंसी, तो उस केस में IDC और IRMS कैलकुलेट करना है, उसके एक्सप्रेशंस डायरेक्टली यूज नहीं करनी,
ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया था जब हमने जीना ब्रेकडाउन और अवलांचे ब्रेकडाउन किया था, जब हमने पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट करा था। वहां मैंने बताया था पीक इनवर्स वोल्टेज वो मैक्सिमम वोल्टेज होती है जो एक डायोड विदस्टैंड कर सकता है बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्रेकडाउन रीजन। पीक इनवर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम वोल्टेज that a diode can withstand before entering into this breakdown region। ये हमारा ब्रेकडाउन रीजन होता है। इस रीजन में आने से पहले जो मैक्सिमम वोल्टेज डायोड जो है विदस्टैंड कर सकता है उसको पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। और यू कैन से दैट इन टर्म्स ऑफ रेक्टिफायर, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज appearing across the rectifier diode when the diode is not conducting। Not conducting means when the diode is in reverse bias mode. So the maximum voltage that can appear across the rectifier, or you can say that the maximum voltage that the diode can withstand before entering into the breakdown region। breakdown region की बात करें, that means diode is in forward bias mode, that means diode is not conducting। हमारी वोल्टेज कितनी है, V is equal to V naught sin omega t। तो V हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब sin omega t हमारा 1 होगा। ठीक है। इन जनरल एट एनी टाइम t वोल्टेज इज V naught sin omega t। ठीक है। V की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, V will be equal to V naught, that will be the maximum value of the voltage when sin omega t is 1। sin omega t की maximum value कितनी होती है, 1। so V is equal to V naught is the maximum value of the voltage appearing across the rectifier diode। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है, the maximum voltage across the diode when it is not conducting, that means when it is in reverse bias mode, is equal to the maximum transformer voltage V naught across the secondary of the transformer। secondary of the transformer में हमने कितनी voltage apply करी थी, V naught sin omega t। ठीक है, विच इज इक्वल टू V। तो V हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा। V नॉट तो कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कब होता है, व्हेन इट इज इक्वल टू 1। सो V इज इक्वल टू V नॉट इज द मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। or you can say that the peak inverse voltage for a half wave rectifier is equal to V naught, where V naught जो है हमारा, that is the peak value of the input voltage। ठीक है। नेक्स्ट, ये लास्ट टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर में, द वोल्टेज रेगुलेशन। देखो मैंने जब जीना डायोड पढ़ाया था वहां पे मैंने वोल्टेज रेगुलेशन टर्म को एक्सप्लेन किया था। मैंने बताया था जीना डायोड जो है इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। क्यों, क्योंकि जीनर डायोड जो है जीनर रीजन में वर्क करता है और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि करंट की कितनी भी वैल्यू हो, जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर में वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ मैंने लिख रखा है, फॉर वोल्टेज रेगुलेशन VDC शुड बी कांस्टेंट नो मैटर व्हाटएवर इज IDC। कितना भी हमारा डीसी करंट हो, जो हमारी डीसी वोल्टेज है वो अगर कांस्टेंट है तो हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो हो गया। वोल्टेज जो है नाउ इट इज रेगुलेटेड, इट इज स्टेबलाइज्ड। ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ रेक्टिफायर क्या होता है, इट इज द वेरिएशन ऑफ डीसी आउटपुट वोल्टेज विद डीसी लोड करंट। ठीक है, कि लोड करंट के साथ डीसी आउटपुट वोल्टेज में कुछ वेरिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे जो हमारा वोल्टेज है दैट इज रेगुलेटेड। ठीक है। सो इसको हम कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पर देखो हमारा, लेट अस कैलकुलेट द डीसी आउटपुट वोल्टेज, मतलब VDC अब हम कैलकुलेट करते हैं। डीसी लोड करंट हमारा कितना है, IDC विच इज I नॉट अपॉन पाई, और I नॉट हमारा कितना है, V नॉट अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस RF प्लस RL। तो दिस गिव्स V नॉट अपॉन पाई इज इक्वल टू IDC इंटू RF प्लस RL। ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट दिस, IDC इंटू RF प्लस RL इज इक्वल टू V नॉट अपॉन पाई। और यू कैन से दैट IDC इंटू RL जो है वो किसके इक्वल होगा, वो VDC के इक्वल होगा। क्यों,
इसके इक्वल क्यों होगा? VDC हमारा कितना है? दिस इज द DC आउटपुट वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL. IDC क्या है? दिस इज द DC लोड करंट मेजर्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL. तो VDC और IDC के बीच में क्या रिलेशन होगा? VDC इज इक्वल टू IDC अपॉन RL. तो ये हमारा कितना आया? IDC इंटू RL. इट कम्स आउट टू बी, यहाँ इक्वेशन से देखो, V0 अपॉन पाई माइनस IDC इंटू RF. ये हमारा आया इस इक्वेशन से. VDC comes out to be V0 upon pi minus IDC into RF. अब इस इक्वेशन को देखो और एक इस इक्वेशन को देखो. यहाँ पे हमने लिखा था VDC is V0 upon pi. एक्चुअली में जो VDC होता है वो V0 upon pi नहीं होता. जो VDC हमारा होता है वो होता है V0 upon pi minus IDC into RF. ठीक है, हम इसको V0 अपॉन पाई कब लिख सकते हैं? जब हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है डायोड का वो निग्लाइजेबल है. इन दैट केस वी कैन राइट VDC इज इक्वल टू V0 अपॉन पाई, और यू कैन से दैट जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट करंट. जो हमारा आउटपुट DC वोल्टेज है, नाउ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट DC करंट इफ द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज निग्लाइजेबल. ठीक है, तो VDC हमारा एक्चुअल में होता है V0 अपॉन पाई माइनस IDC इंटू RF. आइडियली हम कह सकते हैं दैट VDC इज इक्वल टू V0 अपॉन पाई. ठीक है, तो यहाँ पर यही है. VDC जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू V0 अपॉन पाई जो है वो होगी व्हेन IDC इज 0. जैसे जैसे IDC हमारा बढ़ेगा VDC जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पा रहा, वो हमारा डिक्रीज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ RF. और अगर हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है डायोड का वो निग्लाइजेबल होगा, देन इन दैट केस हमारा जो आउटपुट DC वोल्टेज है वो कांस्टेंट होगा V0 अपॉन पाई. V0 तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हो जाएगा एंड इंडिपेंडेंट हो जाएगा. एंड इन दैट केस वी कैन से दैट परसेंटेज रेगुलेशन इज 0. मतलब हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो कंप्लीट कांस्टेंट है V0 अपॉन पाई. It is independent of the output DC current. If the forward resistance of the diode is negligible, it is very small. If then only it is possible. ठीक है, तो परसेंटेज रेगुलेशन जो है इसका एक और फॉर्मूला होता है, that is equal to V no load minus V load divided by V load into 100. Where V no load क्या होता है हमारा? This is referring to the no load और ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ द सप्लाई. एंड V लोड हमारा क्या होता है? दिस इज द फुल लोड वोल्टेज ऑफ द सप्लाई. और रेक्टिफायर के टर्म्स में वी कैन से दैट V नो लोड इज रेफरिंग टू द नो लोड और द ओपन सर्किट आउटपुट वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर, एंड V लोड इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर विद लोड. ठीक है, V नो लोड हमारा क्या है? जब हमारा जो हमने सर्किट जो है हमारा उसको हमने ओपन कर दिया, इट इज ना ओपन सर्किट वोल्टेज, दैट मींस नो लोड इज प्रेजेंट. V लोड हमारा कितना है? दिस इज द वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर विद लोड. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस फॉर्मूले को याद रख लेना. ठीक है, मेन तो इसमें जो हमारा समझने का है, जो इसकी फिजिक्स है वो समझने का है कि वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है. इट सेज दैट जो हमारा आउटपुट है रेक्टिफायर का उसकी वोल्टेज जो है वो रेगुलेट कब होगी? जब आउटपुट जो है उसका आउटपुट वोल्टेज जो है VDC वो हमारी कांस्टेंट होगी नो मैटर व्हाटएवर इज IDC. और VDC जो है हमारा हमने यहाँ से देखा, इट कम्स आउट टू बी V0 अपॉन पाई माइनस IDC इंटू RF. सो VDC जो है इट विल बी कांस्टेंट or independent of IDC if the forward resistance of the diode is negligible. ठीक है, so here we have completed our half wave rectifier. ठीक है, यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा कंप्लीट हो गया. ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में. रेक्टिफायर एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर जो है वो डिराइव करने के लिए आ जाता है. तो जब वो एग्जाम में आएगा देन यू हैव टू calculate the DC and the RMS values of the current and voltages as well. You have to properly calculate the output power, average output power, the input AC power. Then you have to calculate the efficiency eta और ripple factor अगर मांगेंगे R calculate करने के लिए, then you have to calculate IRMS also and IDC also.
then substitute that value in the expression of the ripple factor. Okay, so in the next class we will start with the half wave rectifier.